السلام علیکم، سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں ریحان طارق اور میں ہوں عائشہ یوسف۔ نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر، لیکن اس سے پہلے ایک شارٹ بریک۔ ٹبی سٹی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے سنی رہنما شہید کر دیے گئے۔ خطیب شاہی مسجد موتی بازار خرم رضا قادری کی رہائش گاہ کے باہر سنی تحریک کے کارکنوں کا احتجاج۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نذیر احمد گجانا نے پولنگ کے لیے ملازمین کی فہرستیں نہ دینے پر نیب، پبلک سروس کمیشن، ریونیو، پنجاب ٹیکس بک بورڈ، سوئی گیس، انٹیلیجنس انویسٹیگیشن، اسمبلی سیکریٹریٹ اور انٹیریئر ریجنل کے سربراہان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ خوابوں کے شوقین لاہوریوں کے لیے خوشخبری، ڈی سی او لاہور رضوان محبوب نے گوال منڈی فوڈ اسٹریٹ کا افتتاح کر دیا۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو مالی بحران کا سامنا، 20 کروڑ کی اضافی گرانٹ اور بجٹ کی قسط بھی نہ ملی۔ مریضوں کو 50 سے 80 ہزار روپے کا ڈسپوزیبل سامان خود خریدنے کی ہدایت۔ حکومت پنجاب نے 11 مئی کو پولنگ سٹاف کو بروقت پولنگ سٹیشنز پہنچانے کے لیے پرائیویٹ گاڑیاں کرائے پر لینے کے لیے 6 کروڑ روپے جاری کر دیے۔ 4000 روپے فی گاڑی کرایہ مقرر۔ NA-130 سے پیپلز پارٹی کی امیدوار سمینہ خالد گڈ کی اور PP 158 سے اعجاز زیال کا جلو موڑ میں جلسہ، کارکنوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز سے سابق اراکین اسمبلی اور لیگی رہنماؤں کی ملاقات، انتخابی سرگرمیوں کے حوالے سے تبادلہ خیال، جبکہ PP 140 سے PP اور PTI کے درجنوں کارکنان مسلم لیگ نون میں شامل۔ تحریک انصاف کے NA-121 سے امیدوار حماد اظہر کی آوان ٹاؤن میں انتخابی مہم کے دوران اہل علاقہ سے ملاقات، منتخب ہو کر علاقے کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی۔ چائنا اسکیم میں مسلم لیگ نون کے NA-123 کے امیدوار پرویز ملک اور چودھری شہباز کے اعزاز میں جلسہ، امیدواروں کا پرتپاک استقبال، کارکنوں کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے۔ PP 148 سے تحریک انصاف کے امیدوار میاں اسلم اقبال کے اجرا کے علاقے محمد علی روڈ پر ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم، پمفلٹ تقسیم کیے۔ NA-120 سے آپ جناب سرکار پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر عنبر شہزادہ نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا۔ PP 141 سے تحریک انصاف کے امیدوار چودھری محمد نواز نت کی فیض باغ میں کارنر میٹنگ، کامیاب ہو کر علاقے کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی۔ عوام کی خدمت کا سفر ہمیشہ جاری رہے گا، PP 137 سے امیدوار خواجہ عمران نذیر کی ایک دن امیدوار کے ساتھ میں گفتگو۔ PP 154 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار فیصل میر کا منتخب ہو کر حلقے میں سیوریج، گیس اور صاف پانی کے منصوبے شروع کرانے کا وعدہ۔ ہوم سیکرٹری پنجاب شاہد خان نے سربجیت سنگھ ہلاکت کیس میں کوٹ لکھپت جیل کے سپرنٹینڈنٹ، ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو معطل کر دیا۔ کامران انجم سپرنٹینڈنٹ کوٹ لکھپت جیل تعینات۔ امیر جماعت الدعوہ حافظ سعید احمد نے خسرے سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ویکسینیشن مہم کا افتتاح کر دیا۔ لاہور بورڈ کے تحت انٹرمیڈیٹ امتحانات 18 مئی سے شروع ہوں گے۔ 1,36,380 امیدواروں کے لیے 449 امتحانی مراکز کا قیام، ریگولر اور پرائیویٹ طلباء کو رول نمبر سلپس جاری کر دی گئیں۔ بے نظیر بھٹو قتل کیس کے سینئر پروسیکیوٹر ذوالفقار علی چودھری کا قتل، پنجاب بار کونسل نے کل صوبے بھر میں عدالتی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ اور سٹی الیکشن بس شہریوں میں الیکشن آگاہی مہم کے لیے سرگرم، کس کو ووٹ دیں کس کو نہ دیں، ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر لوگوں کے دلچسپ خیالات۔
हेड लाइन्स आपने मुलाहिजा की और अब बुलेटिन में खबरें तफसील के साथ। शाही बेगम मस्जिद मोती बाजार के खतीब कारी खुरम रजा कादरी के कत्ल के खिलाफ समनाबाद में सुन्नी तहरीक के कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। कारी खुरम रजा कादरी को टिबी सिटी के इलाके में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया था, जो म्यो अस्पताल में जाकर दम तोड़ गए। सानह की इत्तला मिलते ही सुन्नी तहरीक के कारकुन बड़ी तादाद में समनाबाद में उनके घर के बाहर जमा हो गए और कातिलों की गिरफ्तारी के लिए पुरअमन एहतजाज किया। अहले इलाका के मुताबिक खुरम कादरी इंतहाई बाइखलाक और सुलहजो शख्सियत थे। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का माली बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। अप्रैल में 20 करोड़ रुपए इजाफी ग्रांट के अलावा मामूल के मुताबिक बजट की किस्त भी अदा नहीं की गई, जिससे दिल की मुफ्त सर्जरी बदस्तूर बंद है। PIC में मुफ्त इलाज मुआवजे के लिए फंड्स की कमी के पेश नज़र साबिक हुकूमत से 20 करोड़ रुपए की इजाफी ग्रांट फराहम करने की इस्तदा की गई थी, लेकिन 3 माह गुजरने के बावजूद इजाफी फंड्स नहीं मिल सके, जिसके बायस मुफ्त इलाज मुआवजा तातुल का शिकार है। PIC को रवा माली साल की आखिरी समाही की मामूल के मुताबिक 27 करोड़ रुपए बजट की किस्त भी अदा नहीं की गई। नाज़रीन, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के अहदेदार खुर्रम रजा कादरी की शहादत के हवाले से मजीद बात करते हैं। इस वक्त म्यो अस्पताल में हमारे रिपोर्टर वकास अहमद मौजूद हैं, उनसे उनकी शहादत के हवाले से मजीद अपडेट लेंगे। वकास अहमद, ये बताएंगे कि आप इस वक्त म्यो अस्पताल में मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं कि क्या कारी खुर्रम रजा कादरी की लाश पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दी है, या अगर नहीं की गई तो पोस्टमार्टम कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? डॉक्टर्स की जानिब से क्या कहा जा रहा है? ओके, सुना दो मुझे। और जो है वो उसके बाद जो है वो जो कि मौलाना जी आयशा, मौलाना खुर्रम रज़ा के कादरी के कत्ल के ख़िलाफ़ जो है सुन्नी तहरीक के बहुत बड़ी तादाद में जो कारकुनान हैं और उनसे जो अक़ीदतमंद अफराद हैं वो हॉस्पिटल में मौजूद हैं, इस वक्त डेड हाउस में मौजूद हैं। जैसे ही उन्हें पता चला इस हादसे का तो बहुत बड़ी तादाद में सुन्नी तहरीक कारकुनान जो थे वो इमरजेंसी पहुँचे। वहाँ से रैली की सूरत में जो है वो डेड हाउस आए। डेड हाउस में एक अफसोसनाक जो है वाक़या भी पेश आए कि कारकुनान जो है मुश्तल हो गए और उन्हें जो है वो है तमाम दीवारें और जो फांसी जंगलें तोड़ते हुए अंदर चले गए। सर्द खाने में तो जो डेड बॉडी पड़ी हुई थी मौलाना खुर्रम रज़ा की, वो बाहर निकाली और जिसको जो है वो देख कर जो है वो धाड़े मार कर रोते रहे। उसके बाद जो है वो जो कि मौलाना मुजाहिद अब्दुल रसूल जो कि सुन्नी तहरीक के लाहौर डिवीज़न के अहदेदार हैं, उन्होंने कारकुनों से खिताब किया और उनको जो है पुरअमन रहने की अपील की, जिसके बाद जो है जो भी उनके मुतालबात थे डॉक्टरों से कि पोस्टमार्टम जो है वो आज ही किया जाए। वकास अहमद, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर नज़ीर अहमद गुजाना ने पोलिंग स्टेशन पर स्टाफ की तैनाती की फहरिस्तें फ्राहम न करने पर SSP ऑपरेशंस को 8 महकमों के सरबराहान की गिरफ्तारी का हुक्म देते हुए उन्हें कल 9 बजे पेश करने का हुक्म दे दिया है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर नज़ीर अहमद गुजाना की सरबराही में 13 रिटर्निंग अफसरान का इजलास हुआ, जिसमें अक्सर महकमों की तरफ से अमले की तैनाती के लिए फहरिस्तें फराहम न करने की शिकायत की गई, जिस पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने SSP ऑपरेशंस को हुक्म दिया कि 8 महकमों के सरबराहान को गिरफ्तार करके हफ्ते के सुबह 9 बजे फहरिस्तों समेत पेश किया जाए। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का कहना था कि फहरिस्तों की अदम फराहमी इंतखाबी मरहले में रुकावट बनने के मुतरादिफ है। हुकूमत पंजाब ने 11 मई को पोलिंग स्टाफ को बरवक्त पोलिंग स्टेशंस पर पहुंचाने के सिलसिले में प्राइवेट गाड़ियां किराए पर लेने के लिए 6 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से 9 मई की शाम तक प्राइवेट गाड़ियां किराए पर लेने के लिए फंड्स जारी किए गए हैं। प्राइवेट गाड़ियों के मालिकान को 4000 रुपये फी गाड़ी किराया अदा किया जाएगा। ये गाड़ियां 9 मई की शाम तक रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचा दी जाएंगी, ताकि पोलिंग स्टाफ और मटेरियल को बरवक्त पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया जा सके। N130 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार समीना खालिद खुर्की और PP 158 से चौधरी नवीद आशिक दयाल ने जल्लो मोड़ पर इंतखाबी दफातर का इफ्तिताह करते हुए जलसा आम से खिताब किया। जलसा आम से चौधरी एजाज अहमद दयाल, सुफियान घुर्की, उमर अकरम दयाल समेत दीगर ने शिरकत की। चौधरी नवीद आशिक दयाल ने खिताब करते हुए कहा कि दयाल ख़ानदान का जीना मरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, इसलिए वो PPP का साथ कभी ना छोड़ेंगे।
چودھری اعجاز احمد ڈیال نے کہا کہ NA 130 کے عوام پیپلز پارٹی کے ترقیاتی کاموں سے واقف ہیں۔ ڈیال اور گھرکی خاندان عوام کے لیے اپنی جان بھی نشاور کر دیں گے۔ سمینہ خالد گھرکی کا کہنا تھا کہ وہ عوام کی طاقت سے ہی اسمبلی میں پہنچتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 11 مئی کو کامیابی ان کا مقدر بنے گی۔ ادھر پھلروال میں حلقہ NA 130 سے پیپلز پارٹی کی امیدوار سمینہ خالد گھرکی کے اعزاز میں کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور PPP کے امیدوار کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر سمینہ خالد گھرکی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اقتدار میں آ کر پرائمری اسکول کو مڈل اور ماڈل ہائی اسکول کا درجہ دیں گی اور حلقے میں پانی اور سیوریج کا نظام بہتر بنائے گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی شہر کے مختلف حصوں میں انتخابی سرگرمیاں جاری ہیں۔ مریم نواز نے سابق اراکین اسمبلی اور لیگی رہنماؤں نے NA 120 کے مرکزی دفتر میں ملاقات کی اور انتخابی سرگرمیوں کے حوالے سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کرنے والوں میں سابق MPA اجاسم شریف، حاجی نعمان، عائشہ جاوید، محسن لطیف، سید حسن شاہ، سید توصیف اور لیگی امیدوار ماجد ظہور شامل تھے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ووٹرز کو مسلم لیگ نون کے منشور اور سابق حکومت کے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا جائے اور 11 مئی کو زیادہ سے زیادہ ووٹرز کو ووٹ کے لیے متحرک کیا جائے۔ دوسری طرف NA 123 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار پرویز ملک اور PP 144 سے امیدوار باؤ اختر علی کے اعزاز میں کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر PP 144 سے سابق یونین ناظمین میاں سلمان عارف اور ملک عامر گڈو نے ساتھیوں سمیت مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا۔ ادھر محمد پرویز ملک اور PP 143 سے امیدوار چودھری شہباز نے شیر شاہ روڈ پر 3 انتخابی دفتروں کا افتتاح کیا۔ محمد پرویز ملک کا کہنا تھا کہ عوام کو چاہیے کہ 11 مئی کو شیر پر مہر لگا کر اپنی تقدیر کا فیصلہ کریں۔ مسلم لیگ نون خواتین ونگ لاہور کی چیف آرگنائزر شائستہ پرویز ملک نے عیسیٰ کالونی میں خواتین کی کارنر میٹنگ میں شرکت کی۔ اس موقع پر شائستہ پرویز ملک نے خواتین پر زور دیا کہ وہ NA 123 سے پارٹی کے امیدوار پرویز ملک کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرائیں۔ کوٹ خواجہ سعید میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی کارنر میٹنگ میں شائستہ پرویز ملک نے شرکت کی۔ خواتین کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے شائستہ پرویز ملک کا کہنا تھا کہ اب وقت ہے کہ ان کرپٹ حکمرانوں کو اندھیروں میں دھکیلا جائے جنہوں نے ملک کو اندھیروں میں ڈال دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے PP 149 سے امیدوار رانا مشہود کی حمایت میں شبلی ٹاؤن بند روڈ پر خواتین کی کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ عباس سیال کی رہائش گاہ پر ہونے والی کارنر میٹنگ میں نگینہ عباس، منور بی بی، روبینہ بی بی اور زہرا بی بی سمیت خواتین کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ NA 120 میں مسلم لیگ نون کے مرکزی دفتر میں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درجنوں کارکنان نے مسلم لیگ نون کے صوبائی اسمبلی کے امیدوار ماجد ظہور سے ملاقات کی اور مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ ڈاکٹر حسنات شاہ کی قیادت میں ویلفیئر ایسوسی ایشن وفاقی کالونی کے وفد نے NA 126 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار خواجہ احمد حسان سے ملاقات کی اور اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ خواجہ احمد حسان نے حلقے میں اپنے انتخابی دفتر کا افتتاح بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ اقتدار میں آ کر عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما پیر جاوید ہاشمی کی جانب سے وفاقی کالونی میں خواجہ احمد حسان اور سید توصیف شاہ کے اعزاز میں ظہرانے اور کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر پیر ظہور احمد قریشی، سجاد ربانی، ملک خالد کھوکھر، ملک وحید سمیت نون لیگ کے عہدیداران اور یوتھ ونگ کے کارکنوں نے شرکت کی۔ مسلم لیگ نون کے NA 123 سے امیدوار پرویز ملک اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار چودھری شہباز نے چائنا اسکیم میں جلسہ عام میں شرکت کی۔ جلسے میں علی پرویز ملک، غفار چودھری، رانا دلشاد اور عبدالجبار سمیت کارکنوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پرویز ملک اور چودھری شہباز کا پنڈال میں پہنچنے پر پرتپاق استقبال کیا گیا۔ کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے پرویز ملک کا کہنا تھا کہ 11 مئی کو عوام صرف ووٹ نہیں دیں گے بلکہ اپنی قسمت کا فیصلہ کریں گے اور مخالف ہمیشہ کے لیے گمنامی کے اندھیروں میں گم ہو جائیں گے۔ DCO رضوان محبوب نے اسپیشل بچوں کے ہمراہ گوال منڈی فوڈ اسٹریٹ کا افتتاح کر دیا۔ شہریوں نے گوال منڈی فوڈ اسٹریٹ دوبارہ کھلنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ گوال منڈی فوڈ اسٹریٹ کے افتتاح کے موقع پر DCO رضوان محبوب کے علاوہ AC سٹی سامیہ، چیئرمین گوال منڈی فوڈ اسٹریٹ خواجہ شکیل احمد اور ضلع انتظامیہ کے دیگر افسران بھی موجود تھے۔ DCO نے فوڈ اسٹریٹ کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ NA 121 اور PP 150 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں حماد اظہر اور مہر واجد عظیم نے نماز جمعہ کے بعد نمازیوں سے ملاقات کی اور ووٹ کی اپیل کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں حماد اظہر اور مہر واجد عظیم نے رضوان مسجد آوان ٹاؤن میں نمازیوں سے ملاقات کی اور ووٹ کی اپیل کی۔ اس کے بعد انہوں نے ڈور ٹو ڈور کیمپین بھی چلائی۔
PP-148 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मियां मोहम्मद असलम इकबाल ने इशरा के इलाके मोहम्मद अली रोड पर डोर टू डोर कैंपेन की। उनका कहना था कि 11 मई का सूरज PTI की फतह और मुल्क की खुशहाली की नवीद लेकर तुलू होगा। मोहम्मद अली रोड पर PP-148 से PTI के उम्मीदवार मियां मोहम्मद असलम इकबाल ने घर घर जाकर पम्फलेट तकसीम की और वोटर्स को पार्टी के मंशूर से आगाह किया। मियां मोहम्मद असलम इकबाल का कहना था कि तहरीक इंसाफ का मकसद इक़्तिदार की सियासत नहीं बल्कि मुल्क में खुशहाली और अमन लाना है। उन्होंने कहा कि PTI पाकिस्तान को दुनिया के बेहतरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर देगी। मियां मोहम्मद असलम इकबाल ने शहरियों से 11 मई को बल्ले पर मोहर लगाने की अपील की। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की इलेक्शन सरगर्मियां घर घर पहुंच गईं। उम्मीदवार डोर टू डोर जाकर पीपल्स पार्टी का पैगाम पहुंचाने लगे। चंद्राए तहते पिंड में मोहम्मद शहबाज भट्टी की रिहायशगाह पर फैसल मीर के एजाज में कॉर्नर मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें असद शाह, रमजान भट्टी और परवेज भट्टी समेत अहले इलाका और मुकर्ररीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। PP-154 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल मीर ने खिताब करते हुए कहा कि वो मुंतखब होकर इस हल्के को मॉडल टाउन जैसा हल्का बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। PP-153 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियां तारिक अजीज के एजाज में पीको रोड पर कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। मियां तारिक अजीज ने अपने खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी ने खवातीन की फलाह व बहबूद के लिए बहुत जद्दोजहद की है और खवातीन को उनका जायज़ मकाम दिलाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए। PP-143 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद अहमद के एजाज में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। मीटिंग से खिताब करते हुए सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद अहमद का कहना था कि सदर जरदारी ने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन और गवादर पोर्ट के मंसूबों पर काम किया, जिसे कोई और नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि अब यह अवाम की जिम्मेदारी है कि 11 मई को तीर पर मोहर लगाकर उसे कामयाब कराएं। हल्का N120 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हाफिज जुबैर कारदार और PP-139 से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मियां माजिद ने पीर मक्की के इलाके में। इस मौके पर हाफिज जुबैर कारदार का कहना था कि पीपल्स पार्टी मिडिल क्लास तबके की जमात है। अवाम तबकाती निज़ाम के खात्मे के लिए तीर के निशान पर मोहर लगाएं। हम हल्के की तकदीर बदल देंगे। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। N129 और PP-159 से नून लीग के उम्मीदवार मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में पांडोकी गांव में जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें सलमान शहबाज ने खुसूसी शिरकत की। जलसे में नून लीग के रहनुमा तलहा बरकी, राना मुबशर इकबाल, मलिक खालिद फारूक खोखर, मलिक सरफराज खोखर और हाजी मंजूर भट्टी समेत दीगर शरीक थे। सलमान शहबाज ने बुजुर्ग हस्ती हज़रत बाबा सखी मोहम्मद दरवेश के मज़ार पर हाज़िरी भी दी। सलमान शहबाज ने खिताब में कहा कि वो अपने वालिद का पैगाम लेकर आए हैं और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कहते हैं वो करते भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, कॉर्नर मीटिंग्स और जलसों का इनेकाद किया जा रहा है। हल्का N118 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हामिद जमान की अहलिया सायरा जमान ने शाहदरा में खवातीन के साथ कॉर्नर मीटिंग की। सायरा जमान ने कहा कि खवातीन 11 मई को हक राय दही का दुरुस्त इस्तेमाल करें और मुल्क को अंधेरों में धकेलने वाले हुक्मरानों का एहतसाब करें। हल्का N124 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वलीद इकबाल और PP-145 से उम्मीदवार तारिक हमीद के एजाज में मोचीपुरा के इलाके में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। तारिक हमीद का कहना था कि तहरीक इंसाफ अवाम की वाहिद नुमाइंदा सियासी जमात है जो मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेगी। हल्का PP-143 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अरशद खान ने भोगेवाल के इलाके में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर मलिक मुबीन, मलिक अयाज, नादिर अली और फरहान चौधरी समेत पार्टी कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अरशद खान ने कहा कि दहशतगर्दी, लोड शेडिंग और महंगाई जैसी लानतों से पाक एक नया पाकिस्तान बनाने के लिए अवाम को पल्ले पर मोहर लगाना होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के N119 उम्मीदवार मोहम्मद खान मदनी ने अंदरून भाटी गेट में खवातीन कन्वेंशन का एहतमाम किया। सादिया सैफ ने कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ पिसे हुए तबके की तर्जुमानी करती है। मोहम्मद मदनी का कहना था कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। अगर खुद मुख्तार पाकिस्तान बनाना है तो इमरान खान को लाना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेन विंग के ज़ेर एहतमाम सूबाई असम्बली के हल्का 141 के इलाका जनाब पार्क में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में सादिया सुहेल, निगत भट्ट, बाजी सदाकत, लुबना मलिक, उस्मा खान, डॉक्टर अनीसा फातिमा समेत दीगर ने शिरकत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेन विंग की रहनुमाओं ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी के लिए वोट मांगे। हल्का PP-141 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद नवाज नत के एजाज में हजरत मीरा हुसैन जंजानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के बाहर जलसे का इनेकाद किया गया। चौधरी मोहम्मद नवाज नत ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आकर दोनों मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। चौधरी मोहम्मद नवाज नत ने कहा कि अवाम 5 साल तक अपनी शक्ल न दिखाने वालों के झांसे में नहीं आएंगे।
हल्का PP 141 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद नवाज नत के एजाज में फैज बाग के इलाके में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। फैज बाग में होने वाली कॉर्नर मीटिंग में मियां मोहम्मद अशफाक, बहराम खान और गुलाम मोहम्मद समेत अहले इलाका और दीगर कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शहर भर में सियासी उम्मीदवारों के जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स और रैलियों के इनेकाद का सिलसिला जारी है। हल्का PP 147 से आज़ाद उम्मीदवार ताहिर बशीर के एजाज में मोहम्मद नगर में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। हिमायतियों से खिताब करते हुए ताहिर बशीर का कहना था कि वो आवाम के मसाइल हल करने के लिए इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और उनका वादा है कि हल्के से बेरोजगारी के खात्मे में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। PP 149 से आज़ाद उम्मीदवार शोएब खान न्याजी का कहना है कि मुंतखब होकर हल्के के मुतवस्सित इलाकों में ख़वातीन के लिए ट्रेनिंग सेंटर कायम करेंगे। अकरम पाक बंद रोड पर मुनक़िदा ख़वातीन की कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए शोएब न्याजी का कहना था कि अगर वो मुंतखब हुए तो इलाके में तालीम और सेहत समेत दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए फौरी इक़दाम करेंगे। हल्का PP 155 से आज़ाद उम्मीदवार मलिक मकसूद अहमद ने चुंगी अमर सदू बनियावाला पुल में तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया और इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में डोर टू डोर कैंपेन की। मलिक मकसूद अहमद के बंदियावाला पुल पहुंचने पर अहले इलाका की जानिब से उनका फूलों की पत्तियां निछावर करके और नारे लगाकर पुरतब्बाक इस्तकबाल किया गया। PP 153 से आज़ाद उम्मीदवार मियां अब्दुल रज़ाक ने पीको रोड सदीकी नगर में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम चलाई और पम्फलेट्स तकसीम किए। पीको रोड सदीकी नगर से सदीकी बरादरी के सरबराह शाहजाद सदीकी और चेयरमैन मुस्लिम लीग नून वर्कर्स इत्तेहाद के मोहम्मद जहांगीर आबिद ने मियां अब्दुल रज़ाक की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी कराई। मियां अब्दुल रज़ाक ने कहा कि वो 8 साल नाज़िम रहे हैं और अवाम की खिदमत की है। उनका मुकाबला नून लीग के शेर से है। हल्का NA 121 में जमात इस्लामी की विमेन विंग ने हसन टाउन में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें इंतखाबात के हवाले से लाहे अमल तय किया गया। मीटिंग की सदारत चीफ कोऑर्डिनेटर आसमा ज़िया और फ़ाखिरा नसीर ने की। इस मौके पर ख़वातीन वोटर्स को घरों से निकाल कर 11 मई को वोट डालने समेत दीगर अमूर से आगाह किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल अलीम खान ने हल्का PP 154 टाउनशिप में पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में साबिक नाज़िम फरीद खान, मसर इलियास खान, NA 127 से उम्मीदवार नसरुल्लाह मुगल और सूबाई उम्मीदवार सरदार साजिद जोया समेत कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। हल्का NA 120 से आप जनाब सरकार पार्टी के सरबराह ने अपनी इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। डॉक्टर अंबर शहजादा का कहना है कि आवाम सेब पर मोहर लगाकर उन्हें कामयाब करें, वो आवाम को नाश्ते में सेब खाने के काबिल कर देंगे। हल्का NA 120 से आप जनाब सरकार पार्टी के सरबराह डॉक्टर अंबर शहजादा ने इस्लामपुरा बाजार में इंतखाबी मुहिम चलाई। सिटी 42 के इलेक्शन सिटी में लाहौर के इंतखाबी दंगल ज़ेर बहस। सीनियर सहाफ़ी खावर नईम हाशमी का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की पोजीशन मजबूत है, ताहम तहरीक इंसाफ भी छोटे छोटे डेंट डालेगी। इलेक्शन सिटी में मेज़बान यासिर कुरैशी के साथ सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार खावर नईम हाशमी, ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी, कॉलम निगार और तजियाकार अख्तर हयात, सीनियर रिपोर्टर असद साही और जाहिद चौधरी बहस में शरीक हुए। प्रोग्राम एक दिन उम्मीदवार में हमारे रिपोर्टर उमर असलम जाते हैं उम्मीदवारों के घर और उनसे जानते हैं कि उनकी इंतखाबी मुहिम किस तरह से जारी है। मुस्लिम लीग नून लाहौर के जनरल सेक्रेटरी और हल्का PP 137 से उम्मीदवार ख्वाजा इमरान नज़ीर की इलेक्शन मुहिम दिखा रहे हैं। उमर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। एक दिन उम्मीदवार में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हल्का PP 137 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ख्वाजा इमरान नज़ीर से। आइए आपको दिखाते हैं कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन किस तरह चला रहे हैं। लाजपत रोड शादरा पर हल्का PP 137 के ओहदेदारान का इजलास हुआ, जिसमें हल्के से उम्मीदवार ख्वाजा इमरान नज़ीर, समीउल्लाह खान, अकमल खान बारी समेत दीगर ने शिरकत की। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अवाम की खिदमत का सफ़र हमेशा जारी रहेगा। भाई साहब, आपका अपना ताल्लुक जो है वो हल्का PP 139 से है, जबकि आपको टिकट हल्का PP 137 से मिल गया। स्काई लैब से हो गया इस्लाह देना। मैं यहाँ पर आया नहीं, मुझे हुक्म दिया मियाँ शबाशी साहब ने कि आपने अब, क्योंकि उन्होंने भी अपना हल्का छोड़ा और वो काना से इलेक्शन लड़े, और मुझे उन्होंने कहा कि आप शादरा जो कि देहाती और शहरी मिक्सचर है वहाँ से इलेक्शन लड़े, जिसके पीछे थीम ये है कि हम लाहौर के इन दूर दराज इलाकों को लाहौर के साथ मिलाना चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला जो तरक्की का सफ़र है उसके सम्राट यहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। हल्का PP 137 से आज़ाद उम्मीदवार मुनीर मुगल ने ख्वाजा इमरान नज़ीर की हमायत का ऐलान किया, जबकि कैसर टाउन में नायब सदर पीपल्स पार्टी हल्का PP 137 इरशाद शाह ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया।
हल्का PP 137 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ख्वाजा इमरान नज़ीर अपनी इलेक्शन कैंपेन करते हुए इस वक्त कैसर टाउन में पहुंच चुके हैं, जहां पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार के हवाले से बात करेंगे। इनका ओहदा बता दें और ये बताएं कि कैसी जा रही है। उमर, आपने देख ही लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे 10 रोज़ हुए हल्का में आए हुए। नवाज शरीफ की इतनी मोहब्बत है कि पीपल्स पार्टी के आज हमारे नाज़म जो थे यहाँ के इस UC 5 के अरशद अली शाह साहब, वो अपनी पूरी टीम के साथ मलिक इफ्तार साहब दीगर साथियों के हमरा उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लिया और आज इस UC में अल्हम्दुलिल्लाह शेर ही शेर हो गई है और इंशाअल्लाह ताला ये UC और ये PP अल्लाह के फजल से शेर का किला साबित होगी। शेर का किला साबित होगी हल्का PP 137, ये कहना है ख्वाजा इमरान नज़ीर का। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान मेन बारादरी रोड शादरा समेत मुख्तलिफ मकामात पर मुस्लिम लीग नून के दफातर का इफ्तिताह किया। लीगी उम्मीदवार ने मेन बाजार शमसाबाद और शादरा के मुख्तलिफ मकामात पर जलसों से खिताब भी किया। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। और नाज़रीन, तख्ते लाहौर को जीतने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की जानिब से शहर के मुख्तलिफ हलकों में कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के NA 123 से उम्मीदवार परवेज मलिक और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार चौधरी शहबाज ने चाइना स्कीम में जलसा-ए-आम में शिरकत की। परवेज मलिक और चौधरी शहबाज का पंडाल में पहुंचने पर पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। कारकुनों से खिताब करते हुए परवेज मलिक का कहना था कि 11 मई को अवाम सिर्फ वोट नहीं देंगे बल्कि अपनी किस्मत का फैसला करेंगे और मुखालिफ हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरों में गुम हो जाएंगे। हल्का PP 152 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई टिकट होल्डर ख्वाजा सलमान रफीक ने मेन मार्केट में मोहम्मद यूनुस बेग और हबीब अहमद रशीद के दफातर का इफ्तिताह किया और दुकान दुकान अपनी इंतखाबी सर्विस चलाई। दफातर के इफ्तिताह के साथ साथ ख्वाजा सलमान रफीक ने मेन मार्केट का दौरा किया और दुकान दुकान जाकर अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। ख्वाजा सलमान रफीक ने इस मौके पर दुकानदारों से दरख्वास्त की कि 11 मई को शेर पर मोहर लगाकर कायद मियां नवाज शरीफ को जिताएं ताकि पाकिस्तान तरक्की की सिमत में चले। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हल्का NA 121 और PP 150 से उम्मीदवार महर इश्तियाक डोला चौक में महर शफाकत के घर कॉर्नर मीटिंग की। इस मौके पर अहले इलाका और कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। कॉर्नर मीटिंग से खिताब में महर इश्तियाक का कहना था कि 11 मई को शेर पर मोहर लगाकर मुस्लिम लीग नून को अवाम की खिदमत का मौका दें। हल्का PP 146 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद वहीद ने शालीमार लिंक रोड पर सलीम स्वीट्स शॉप और पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह किया। कारकुनों से खिताब करते हुए मलिक मोहम्मद वहीद का कहना था कि साबिक पंजाब हुकूमत ने सूबे में स्कूलों, सस्ती स्कीमों और सड़कें तामीर करके सूबे को खुशहाल कर दिया है। उन्होंने कहा कि PP 146 के वोटर्स किसी के वरगलाने में नहीं आएंगे। 11 मई को फतह शेर की होगी। हल्का NA 120 के रिहाइश पजीर लोगों के सियासी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और उनके मसाइल हल करने के लिए मियां नवाज शरीफ के नासिर बाग में मरकजी इंतखाबी दफ्तर में शिकायत डेस्क कायम कर दिया गया। मुनव्वर सैयद हामिद की ज़ेर निगरानी शिकायत डेस्क कारकुनों से सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक शिकायत वसूल करेगा और रोज़ाना की बुनियाद पर मसाइल हल किए जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम ने इंतखाबी आगाही के लिए GPO चौक से रैली निकाली। वकला का कहना था कि मुस्लिम लीग नून और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पैगाम हर जगह पहुँचाने के लिए वो हर हल्के का दौरा करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी मंसूर अहमद कम्बो की जानिब से फैसल टाउन में जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे में NA 126 से नून लीग के उम्मीदवार ख्वाजा अहमद हसन, PP 151 से सैयद तौसीफ शाह, मोहम्मद अरशद, नसीर अहमद, मोहम्मद नसीर, हाजी अफजल और मुजाहिद नूर समेत दीगर कारकुनान और अहदेदारान ने शिरकत की। ख्वाजा अहमद हसन का कहना था कि शेर को जाली कहने वाले 11 मई को शेर के हाथों बच नहीं पाएंगे। हल्का PP 152 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार डॉक्टर मुराद रास ने NA 126 के उम्मीदवार शफकत महमूद के हमरा गार्डन टाउन में विमेन विंग के साथ कॉर्नर मीटिंग की। गार्डन टाउन अवामी सेंटर में मुनक्किद की जाने वाली मीटिंग में मलिहा लोधी, तलत नकवी, नसीम आपा और निगत महमूद समेत इलाके की खवातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से यूनियन काउंसिल 74 में खवातीन कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली सुहेल मलिक और उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली आरिफ नसीम काश्मीरी ने खुसूसी शिरकत की। खवातीन कन्वेंशन में पार्टी की खवातीन वर्कर्स के अलावा दीगर अफराद भी मौजूद थे। कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए PP 149 से आज़ाद उम्मीदवार सैयदा ताहिरा शिराजी ने कहा है कि वो मुंतखब होने के बाद इलाके की किस्मत बदल देंगी। PP 149 से आज़ाद उम्मीदवार सैयदा ताहिरा शिराजी के एजाज़ में फजलगंज मोहल्ला सुपर स्टॉप में मुनाकिदा कॉर्नर मीटिंग में माजिद बशीर, असद शिराजी, मोहम्मद इम्तियाज़, मोहसिन शिराजी समेत अहले मोहल्ला मौजूद थे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हल्का NA 124 लालपुर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां शहबाज शरीफ इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे हैं।
फ्लाई ओवर बना है, सबसे पहले इसको बनवाया था अंडरपास हुए फ्लाई ओवर, सबसे पहले 4 साल पहले इसको शुरू किया था। आज जिस मोहब्बत और जोश का आप मुजाहरा कर रहे हैं, मुझे आपने आज खरीद लिया है। मेरी सारी थकन दूर हो गई है। मेरी सारी थकन दूर हो गई है और मैं आपको सलाम करता हूँ आपको। और बापे ने बचा लेना, बापे ने बचा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ हल्का NA 124 लालपुल में जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे थे। उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। जी हाँ नाज़रीन, इस मौके पर अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर इस वक्त लालपुर पर मौजूद है। बुलेटिन का हिस्सा बनेगी मजीद आम खबरें, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में इंतखाबी सरगर्मियाँ जारी हैं। हल्का NA 119 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हमजा शहबाज के लिए यूनियन काउंसिल 27 के सदर नन्ना ठेकेदार ने घर घर जाकर वोट मांगे। इजलास में कारकुनों को वोट डालने के तरीक़ेकार से आगाह किया गया। शेर शाह का कहना था कि मुस्लिम लीगी कारकुन इलेक्शन के दिन खवातीन को वोट डालने के लिए कायल करें। वकास गुज्जर का कहना था कि शहरी पोलिंग स्टेशन पर जाते वक्त अपना असल शनाख्ती कार्ड हमरा रखें। मुस्लिम लीग नून UK के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इकबाल सिंधु का कहना है कि आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर क्लीन स्वीप करेगी। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए इकबाल सिंधु का कहना था कि सिर्फ नारों और वादों से तब्दीली नहीं लाई जा सकती, बल्कि अमल करने की भी ज़रूरत है, जो मुस्लिम लीग नून ने किए हैं। मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन वर्कर्स ने हल्का PP 137 मेन बाजार जामूसा से इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया और घर घर जाकर लोगों से वोट मांगे। इस मौके पर सुगरा आयशा, शबनम अनवर, राहत शेख, सहर जमील, इमराना जमील, अफशान चौधरी, नादिया जावेद, अनम जमील और आबिदा रफीक समेत दीगर भी मौजूद थे। वर्कर्स ने मुस्लिम लीग के लिए वोट मांगे और कहा कि शेर पर मुहर लगाकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कामयाब कराएं। जद्दा से मुल्तान जाने वाले मुसाफिरों को लाहौर एयरपोर्ट पर ज़बरदस्ती उतार दिया गया, जिस पर मुसाफिरों ने शदीद एहतजाज किया। मज़ीद जानते हैं रेहान गुल की इस रिपोर्ट में। बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस, ये नारा है PIA का, जिसका मुजाहरा आज लाहौर एयरपोर्ट पर मुल्तान जाने वाले मुसाफिरों को ज़बरदस्ती उतार कर किया गया। जद्दा से मुल्तान जाने वाली PIA की परवाज़ 732 के मुसाफिरों ने लाहौर एयरपोर्ट पर उतारे जाने के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुसाफिरों का कहना था कि उन्हें जद्दा से मुल्तान तक के हवाई सफ़र का किराया अदा किया है, ताहम अब इन्हें ज़बरदस्ती बस के जरिए मुल्तान भेजा जा रहा है। PK 732 की इन्होंने टिकट लिया है टू मुल्तान, कराची से मुल्तान। अब ये हमें लाहौर से ये भेज रहे हैं आपके सामने जहाज पे। ये हमारा PIA जहाज है, हमें ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है, हम अपनी खुशी से नहीं जा रहे हैं। सुबह से हम यहाँ जलील हो रहे हैं। अब इन्होंने मेहरबानी की है, हम पर एहसान किया है बहुत बड़ा कि हमें ये बसें अरेंज करके दी हैं। मुजाहिरीन ने एयरलाइन की जानिब से फ्राहम किए जाने वाले खाने को भी नाकिस करार दिया। खाना दिया है, बिल्कुल ऐसे खाना दिया है कि ऐसे तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। दूसरी जानिब PIA इंतजामिया ने वाक़ये का नोटिस लेने के बजाय मुसाफिरों को ज़बरदस्ती बजरिया बस मुल्तान भिजवा दिया। PIA अमले की नाकिस कारकर्दगी के बायस कौमी एयरलाइन सफ़ेद हाथी बन चुकी है और मुसाफिरों का इस पर से एतमाद रोज़ बरोज़ उठता जा रहा है। कैमरामैन अली शेर के साथ रेहान गुल, सिटी 42।
सिटी 42 के न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।